Good evening and welcome everyone. My name is Diamond Gupta and I'll be your host and instructor for this session. Uh, I don't see ample amount of participants today. Why is that? Recording in progress. लोग नींद में हैं क्या? Is my voice audible to all of you? Guys, is my voice audible to all of you? Okay, is my voice audible to all of you? Yes, no, maybe. Yes, great. चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं. I have 50-60 participants here now. I'm waiting for more. So 2 minutes और रुकते हैं. We'll start at 8:05. Right? We'll wait for another 2 minutes for others to join, and then further we'll start. Make sense? Yeah. Just give me 2 minutes. Okay, is my screen visible to all of you? Huh? Mr. Shubham, the screen is not for you to write. If you do the same mistake again, I'll throw you out of the session. Make that thing very clear, guys. Right? The chat box is for you. The screen is not for you. Okay, just give me one moment.
Okay, I've thrown one person out of this meeting because she was drawing rubbish in the screen. So let's make sure you do not make the same mistake again. Clear? Everyone? Make sense? Okay. Guys, this is a professional forum, right? So let's keep it professional. है ना? यहाँ पे आके बदतमीजी नहीं करते हैं. ठीक है? आप लोग 10 साल के बच्चे तो हो नहीं कि आप लोग करो, नर्सरी के बच्चे हो, मैं मना कर रहा हूँ, है ना? So let's not do that. One moment. Okay, we'll start from the beginning, guys. Hi, welcome, hello everyone. नमस्कार सभी को. मेरा नाम डायमंड गुप्ता है और मैं आपके इस सेशन का आपका होस्ट और आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा. मैं पिछले 6.5 साल से इस मार्केट में हूं और जो भी मैंने सीखा है उन चीजों को पार्ट बाय पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं और आप लोगों को कोई भी डाउट रहता तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको हेल्प करूं. ये मेरी कोशिश रहेगी. और देखिए, मार्केट बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है. इजी होता है, सिंपल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में 3-4 चीजें ही करनी होती है. वॉइस ऑडिबल है सबको? माय वॉइस इज ऑडिबल? बिकॉज समटाइम्स आई एम ब्रीदिंग. इट्स clear, right? Loud and clear. Everyone, can you write loud and clear? Absolutely fine. Okay, fine. Thank you. So it cannot be for half the people I am audible and half the people I'm not audible. I cannot do that. वो भेदभाव नहीं कर सकता मैं, है ना? चलो शुरू करते हैं. I'll be conducting the session in both the languages, in both Hindi and English. In case I'm explaining anything in Hindi, in that case, you please consider that particular moment. Wait for me to complete that particular para or that particular topic in Hindi first, and then I'll further come to English. ध्रुव, मैंने अभी अभी एक इंसान को बाहर फेंका है क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे थे. One moment, हाँ. Okay. ठीक है, चलो. I've removed that person as well. So yeah, so make sure that you wait for that particular amount of time so that sir can explain that particular part to in Hindi, and then he'll further come to English. सेम चीज मैं आपको हिंदी वालों को भी बोल रहा हूँ. मैं आपको हिंदी में अगर कोई चीज, इंग्लिश में कोई चीज बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर रुकना है, क्योंकि मैं आधी चीजें बता के फिर मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ. ताकि मैं इंग्लिश में पूरी चीज एक्सप्लेन कर लूं, या फिर हिंदी में कर रहा हूं तो मैं हिंदी में पूरी चीज एक्सप्लेन कर लूंगा, तो उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा. Hariharan Balaji sir, I have already said what you have, I mean, read what you have said, and then I have conveyed something to you, right? I hope you heard it. And it was very loud and clear that I am going to speak in both the languages. Only English or only English, Hindi is not possible. Okay? So there is no point of you repeating the same thing, right? Okay. Let's come to the market, guys. So stock market is a very easy game, but not simple game. The only two things which can happen in the market is either the market can go up, either the market can go down. या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या तो मार्केट नीचे जा सकता है. बहुत ही इजी है मार्केट, लेकिन सिंपल नहीं है. क्यों? आप कहीं से भी खरीदोगे तो जरूरी नहीं है कि वहीं से ऊपर जाएगा. हो सकता है वो यहां तक ऊपर आ चुका है और वहां से गिर जाए, और आपने ऊपर जाने के लिए पैसे लगाए और मार्केट गिर जाए. क्या करोगे? Right? It's only my voice. I'm not going to share anything in regards to the market today. I'm going to teach you what are the psychological point where exactly you need to pressurize in order for you to make profit in the market. Simple, guys.
Can we only focus on my voice now? And if you have any question in regards to my voice, you can tell me. ठीक है, अभी आप खाली क्वेश्चन करोगे जो भी मेरे वॉइस के रिलेटेड होगा, कोई स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, मेरे वॉइस के रिलेटेड कोई भी इशू है आपको जो मैं समझा रहा हूं उसमें कोई डाउट है प्लीज पूछिए, बाकी कोई डाउट नहीं पूछेगा, कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर? मैं कुछ समझाने आया हूं, वो चीज मैं समझा लूंगा। ठीक है, ओके। सो when you come to the market, there are certain things which you need to consider in the market, right? The market can either go up, either go down. Only two possibilities are there, but out of those two possibilities as well, people are unable to make money. People are not able to make money. Why so? Anyone? Any guesses? Right? I'll tell you the lack of knowledge. No, everyone has knowledge. Is it that any one of you who have been a failure in the market and you have never made a profit in the market? ऐसा कभी हुआ है कि आप मार्केट में फेलियर हो लेकिन आपने कभी भी प्रॉफिट नहीं किया मार्केट में? ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। आपने प्रॉफिट जरूर किया है लेकिन आपके लॉसेस इतने बड़े थे कि आपका प्रॉफिट नेग्लिजिबल हो गया, आपके प्रॉफिट का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, because your losses were so significant that your profit could not adjust with that and hence you are out of the market. Is that everything which happened yet? यही हुआ है आज तक मार्केट में आप लोग के साथ, जिन लोगों ने भी मार्केट में फेलियर का सामना किया है? राइट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मार्केट को पढ़ते हैं। क्लियर? सो आई विल टेल यू 7 लॉज। मैं 7 रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ आपको बताऊंगा और उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, ये डिस्क्लेमर आप सबको मिल जाता है जब आप मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो सुबह सुबह, बट आप में से कोई पढ़ता नहीं होगा इसको। I'm damn sure that you guys never read this disclaimer. However, I'll read this disclaimer to all of you. Is the disclaimer visible? डिस्क्लेमर दिखे तो बताना। हाँ, एक मिनट, सबको डिस्क्लेमर दिख रहा है? रिस्क डिस्क्लोजर, yes everyone, make it quick. चलिए, 9 out of 10 individual traders in equity futures and options segment incurred net losses. On average, loss makers register net losses, net trading losses close to 50,000. Over and above the trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction cost. Those making net trading profit incur 15% to 50% of such as transaction cost. यही 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. These 4 things which you need to consider. Number 1, 9 out of every 10 person who come into the market are making losses. So first consider yourself that you are not the special one. आप पहले खुद को, आरिफ, अलमास, मैं 3 लोगों को भगा चुका हूं अभी सेशन से क्योंकि वो लोग स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे थे. अगर मेरे को एक और बंदा मिल गया मैं भगा दूंगा. ठीक है, फिर मैं स्क्रीन क्लोज करके मुंह से जवानी समझाऊंगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन पे. This for the last time, I'm requesting you, please do not do that. Okay, so when you come to the market, understand that there are things which are happening in the market. ठीक है, और मार्केट का जो डेटा है, पहले डेटा को एनालाइज करो और खुद को एक चीज समझा लो, आप कोई स्पेशल वन नहीं हो. यू आर नॉट द स्पेशल वन who is going to be that 1% out of those 10. You will be in the 90% of the people who are making losses. You will have to drag yourself to the rest of the 10%. Clear? और ये क्या एक दिन में होगा? Will that happen in a single day? The answer is no. Will that happen in a single month? The answer is no. It will take at least 6 months to build yourself to that trader platform. It will take 6 months कि आप 6 महीने आपको लगेंगे कि आप उस टाइप का ट्रेडर बन सको. ट्रेडर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लॉस सब देते हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको मार्केट के मूवमेंट से फर्क ही ना पड़े. मेक सेंस एवरीवन?
फैन नहीं, ऊपर से जेट फाइटर गया यहाँ से। क्लियर? ओके। ऑन एन एवरेज सब लोग 50,000 का लॉस कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज एवरी पर्सन इज मेकिंग 50,000 ऑफ लॉसेस over and above the trading losses incurred. Loss makers expend an additional 28% of net trading losses transaction cost. Almost जो आप प्रॉफिट भी कर रहे हो ना, उसके ऊपर आपका 28% तो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, और जो प्रॉफिट कर भी रहे हैं उनमें से भी प्रॉफिट का 15 से 50% तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही दे रहे हैं. So you should not give that much amount of transaction cost, and I'll teach you all this in a calculative laws. कुछ लॉ मैं आपको बताऊंगा जो आपको इनको कॉन्क्योर करने में हेल्प करेंगे. क्लियर एवरीवन? One moment, it's a jet fighter flying above my house. War होने वाली, war. One moment, I'm sharing my whiteboard screen. Okay, is my whiteboard is visible, everyone? So there are certain rules when you come into the market. जब आप मार्केट में आते हो तो कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है जो आपको फॉलो करने हैं. ठीक है? सबसे पहले मार्केट में आते हो तो किस चीज की जरूरत है? When you come to the market, what is the first thing which you require? Fund, capital, of course. Right? First thing you require is fund, capital or fund. That's number one, right? What will happen if you do not have a good management skill in this capital or fund, whatever you have? If you do not have a good management skill, what will happen? अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या करना है, इस कैपिटल के साथ कैसे इसको मैनेज करना है, तो क्या हो जाएगा? आप लॉस करोगे. So first rule is understand capital management. How do you manage your capital? By managing the risk. You manage your risk and your capital will be managed. आप अगर रिस्क मैनेजमेंट जानते हो तो आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा. सबसे पहले कैपिटल मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ चीजें जरूरी है, वो चीजें मैं आपको फर्दर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आवाज क्लियर आ रही है ना आप सबको? आवाज क्लियर आ रही है ना? है ना? तो अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना, तो सर मैडम आपकी तरफ दिक्कत है, मेरी तरफ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आधों को अच्छे से सुनाई दूं, आधों को ना दूं. ठीक है? तो कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा लेटर इन द सेशन, वंस आई टेल यू ऑल द लॉज. पहला समझ लो कि आपको कैपिटल को मैनेज करना है. आपको अगर पता है कि आप अपना कैपिटल किस तरीके से एलोकेट करोगे, एलोकेशन करोगे, मैनेजमेंट करोगे, उसका सही से मैनेज करोगे, तो आपको लॉसेस नहीं होने वाले. सॉरी, लॉसेस तो होंगे, लॉसेस इनएविटेबल है मार्केट में, लेकिन आप टिक जरूर जाओगे मार्केट में. और मार्केट में कितने महीने टिकना है आपको? How many months you have to be just bear in the market? You just bear the market for how many months? 6 months. And once you conquer the 6 month, if you stay in the market, you will be remained in the market. Clear everyone? Now understand one thing, it's a cycle. एक चीज समझ लीजिए, ये साइकिल है. किस चीज का साइकिल है? आप पैसा लेके आते हो, आपके पास नॉलेज नहीं होता है, आप पैसा गवाते हो, फिर आप नॉलेज बटोरते हो, उसके बाद वापस पैसा कमाने की कोशिश करते हो, उसके बाद वापस से गवाते हो, क्योंकि इन सब में पैसा जब आप लेके आते हो और नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर है. It's a cycle. You have a capital, you come to the market, you lose the money, you further gain
You try and gain knowledge in the market. By the time you again start accumulating money, you already forgot what you have learned. Clear? And you again start making money. By the time you make money again, you forgot it. So again the cycle continues. जब तक आप पैसा वापस लेके आओगे, आप भूल जाओगे कि 6 महीने 3 महीने पहले क्या आपने सीखा था। जब आपने पैसा लूज किया था तो आप भूल जाओगे। तो वापस जब तक आओगे ना, आपका पैसा खत्म हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। क्लियर? तो आपको पैसा और आपका नॉलेज साथ में टाइम पे होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपके क्या ज्यादा होता है जो आपके अनकंट्रोलेबल हो जाता है? लॉसेस। So the second thing and the most crucial part of every trading career life, manage your losses. You can say limit your losses. You can say set a loss target. आपको पता ही नहीं आप कितना लॉस कर रहे हैं। You do not have any idea how much you are here to lose. How many of you know how much you want to earn in a single day? Tell me. कोई भी बता दो, कुछ भी बता दो। 10 करोड़ बता दो। कौन सा मैं कमा के दे रहा हूँ आपको 10 करोड़? बता दो। 3 करोड़, 3000, 1000, 10 रुपया, 50,000, 100 करोड़ एक दिन में। यामिनी मैडम, आधों ने तो 5-6 जीरो लगा दिए, 10 जीरो लगा दिए, जितने लग जा रहे हैं भाई। गॉड इज ग्रेट। सबसे अच्छा आंसर दिया एक बंदे ने, कहा डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल। आप 1000 रुपए लेके आओगे एंड यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू गिव यू 1000 रुपीज, इट इज 100% रिटर्न। अगर इतना रिटर्न होता तो सब यहीं पैसे लगाते। क्लियर? It always depend upon your capital. You bring 2000 crore rupees and you expect 1 crore every day. Forget 1 crore. You expect 2 crore every day. That is possible. Because that is how much? Only 0.2%, 0.1%. Right? You bring 2000 crore, then 2 crore is possible on everyday basis. Yes or no? हाँ या नहीं? आप 2000 करोड़ लेके आओ, फिर तो पॉसिबल है उतना कमाना, 2 करोड़ डेली कमाना, है ना? तो कैपिटल बड़ा करो पहले। उससे पहले सोचो कि कमाने से पहले कितना लॉस दे सकते हो। हाउ मच लॉस यू कैन गिव इन द मार्केट। नाउ रिप्लाई, व्हाट इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लॉस यू कैन बियर ऑन डेली बेसिस? $10,000, 5 से 10%, मैक्स 500, 5000, 5000। Those who are saying 1%, 2%, वो सब मत सोचो। 25% मत सोचो। You know that is 25%, 20%. But when you go to your bed at the night time, जब आप बिछौने पे जाते हो ना रात को, तब आपके दिमाग को नहीं पता कि वो 1% है, 2% है। आपको खाली अमाउंट दिखता है। सो अपने दिमाग में अमाउंट सेट करो, कितना चाहिए लॉस कि नींद आ जाए ढंग का। How much loss you are able to bear, that can give you a peaceful sleep on that particular night. I'll tell you, don't worry. I'll give you all the description. Just tell me, you tell me what is 5 से 10 पॉइंट एवरी ट्रेड। वो सब मत बोलो यार, पैसे बताओ। पैसे अंत में पैसे गिने जाते हैं। शाम को आपको याद दिखता है कि अरे भाई 3000 रुपए कमा लिए, ए भाई 5000 चले गए। ये नहीं बोलते कैपिटल का 1% ड्रेन हुआ, 0.5% ड्रेन हुआ है। करेक्ट। अभी किसी का 1,00,000 2 लाख का रिप्लाई नहीं आया। जो 10 करोड़ रिप्लाई कर रहा था ना, उसका 1,00,000 रुपए का भी रिप्लाई नहीं आया भाई का।
The person who was saying that I need 2 crore, 3 crore rupees, he didn't even replied 1, 1 lakh rupees. Forget about everything. He didn't even replied 1 lakh rupees. Right. See, your expectations are somewhat above the sky. You want the market to pay you what exactly you're not even investing. How will that happen, my friend? Right. So first thing first, always set an realistic aspect with the market. Your expectations from the market should be realistic. ऐसा expectation रखो market से जो realistic हो. आपके कैपिटल पे आपको कितना लॉस लेना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, उसको छोड़ दो. आप पहले ये सोचो कि आपको डेली का लॉस, आपका सुकून भरा लॉस कितना है. पहले वो लेने की आदत डाल लो, और वो लो ना तो सुकून से सो जाओ पहले. क्यों? आप वो लॉस देके निकले हो. आज देखो, आज मैं मार्केट ना नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा था. आई वाज प्रेडिक्टिंग अ नेगेटिव मार्केट टुडे. आई लॉस्ट समवेयर अराउंड 10-12,000 टुडे. 10-12 हजार का नुकसान हुआ मेरे को, क्योंकि मैंने 3 ट्रेड लिए, तीनों नेगेटिव ट्रेड थे, और तीनों 10 से 12 हजार का नुकसान था. लेकिन जब मार्केट नीचे था तब का तब, अगर मैं उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करता तो आज शाम तक ना मेरे को 1.5-2 लाख का लॉस हो जाता. I was taking negative trades in today's market. I was not sure where exactly the market was going, because in the daytime the market was sideways. So what I was doing, I was focusing on the negative trade. Wherever I was getting opportunities, I was taking negative trade in the market. Right? And I lost somewhere around 10-12K, right? 10-12,000. But if I would have hold all those trade, I would have definitely lost 1 to 2 lakh rupees today itself. But since I knew my loss projection and my loss was sure shot, that if I make a loss, I'll make this much amount of loss and I'll get out of the market. And hence I took my losses way before the market made any movement. मार्केट के मूवमेंट करने से पहले ही मैं अपना लॉस लिया और मैं मार्केट से दूर हो गया. अब मुझे नहीं फर्क पड़ता मार्केट कहां जा रहा है, मेरा प्रॉफिट आ गया, मेरा लॉस आ गया ना, तो मैं मार्केट से चुपचाप बाहर हो जाता हूँ. मेक सेंस एवरीवन? समझ में आया? तो पहले अपना लॉस सेट करो कि क्या लॉस लेना है. यू सेट इट योरसेल्फ. मुझे नहीं पता, शायद आप 100 रुपए के साथ ही खुश हो आज के लॉस के लिए, कोई बात नहीं. लेकिन 100 रुपए अगर आप 15 दिन दे दोगे ना, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ 16वें दिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है? आई रिमेम्बर 2 years बैक आई केप्ट एन कॉन्टेस्ट. 2 साल पहले मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा था. उसमें मैंने एक बात कही थी कि आप ना 15 दिन खाली डेली मेरे को 1,000 रुपए का नुकसान करवा दो. और मुझे याद है उस समय बैच 1,000-1,200 लोगों का था, और शायद हमें 10 लोगों या 12 लोगों को देना पड़ा था खाली. नॉट इवन 1%. मुझे 1% लोगों को भी नहीं देना पड़ा. 2,000 के आसपास का बैच, और मुझे 1% लोगों को भी नहीं देना पड़ा, जिन लोगों ने 15 के 15 दिन 1,000 रुपए नुकसान किए हो. क्यों पता है? और इसमें ना 5 से 7% ऐसे थे जो चाहते, 14 दिन उन लोगों ने चाह के लॉस करवा लिया, लेकिन 15वें दिन गलती से प्रॉफिट हो गया. मतलब उन 15 दिनों में एक दिन गलती से प्रॉफिट हो गया. 5-7% ऐसे लोग थे. Clear? So if you set your daily goals that okay, this is the amount of loss which I'm fixing for myself, and for the next couple of days I'm going to take this loss without any regret, you're going to learn from the market a lot of things. But if you think that only thinking about making money out of the market, you will only feel that okay, let's do this trade, let's do this trade, and you will keep on trading, and that will only keep growing your trading cost, not your trading money and your capital. That will not grow your capital. वो आपका capital नहीं बनाएगा, वो खाली आपका trading cost बढ़ाएगा. Clear everyone? Make sense? Can we move ahead? आगे बढ़े?
So you will set your losses target. Now, did I ask you how much money do you want to make? All of you said 2 crore, 3 crore, 1 lakh, 2 lakh. Some practical expectations were also there. 2000, 3000, right? मैंने जब पूछा कि कितना कमाना है, कई लोगों ने 1-2 करोड़ बता दिया, 5 करोड़ बता दिया. बताने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं. अब आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में 1 करोड़ कमा लूं, तो यार 50 ट्रेड करोगे ना तो भी कम पड़ेगा, है ना. और 50 में प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 25 तो गलत होने वाले हैं. Probability says that if you, let's say you want to take, even if you take 50 trades, you're not going to make 1 crore in a single day out of your capital of 2-3 lakh 5 lakh rupees, right? You're not going to make that much amount of money in a single day, right? So when you think that you will make that much amount of money, you will have require a 20 times or 30 times more than that capital. Remember that. Now if your internet connection is very poor, guys, is my voice audible? Is my voice audible enough? Clear है? उदित सर, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्लियर नहीं है. मेरे में कोई दिक्कत ही नहीं है ना. या फिर मेरे को आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा कि मैं आपको वॉइस रोक रोक के भेज रहा हूं, है ना. ऐसा तो है नहीं सर. उल्टा मेरे को उदित नारायण के ज्यादा गाने पसंद है. चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है. ओके ओके, मूविंग अहेड गाइस. So set your realistic expectations as far as profit is concerned, right? आप अपने प्रॉफिट को भी लेके रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, राइट. एंड व्हाट शुड बी योर, दैट शुड बी योर टारगेट, योर प्रॉफिट्स. राज शॉ, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है? एक मिनट. आई एम रिमूविंग दैट पर्सन. ओके, हो गया. वन मोमेंट. सेट योर profit targets. So you will set your profit target for the day. हमेशा अपने दिन का प्रॉफिट टारगेट सेट कीजिए कि हाँ आज इतना कमाना है, और वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपके लॉसेस के साथ. कैसे सिंक्रोनाइज होना चाहिए मैं बताऊंगा. वो आपके लॉसेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. योर प्रॉफिट शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड टू योर लॉसेस. आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रोपोर्शन इन अ व्हाइल. Just write this, that you need to set a profit target, right? When you set a profit target, at that point of time you will consider yourself that okay, this is the amount of profit which I am here to make, and once I acknowledge this, I'm done for the day, right? मैं अगर 2000 रुपए आज कमाने आया हूं और मैंने 2000 कमा लिया, सिस्टम बंद कर दो ना. अगर मैंने सोच के आया हूं कि मैं आज 3000 का लॉस करूंगा, 3000 का लॉस मैंने देख लिया, सिस्टम बंद कर दो ना. कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है कि पूरे दिन ही ट्रेडिंग करते रहना है? Is it written anywhere in the sculptures, क्या बोलते हैं उसको, manuscripts and all those things? Is it written somewhere that you need to trade for the entire day? No, right? So go ahead then, leave the trading for that day. छोड़ दो उस दिन का ट्रेडिंग, क्या रखा है, कोई बात नहीं, है ना. दिन का लॉस टारगेट पूरा हो गया या प्रॉफिट टारगेट पूरा हो गया तो ट्रेड छोड़ दो. Clear everyone? If you have somewhere around touched your loss target for the day or your profit target for the day, close the system for that day. Trade on the next day. That's okay. Clear everyone? Make sense? Moving ahead.
अच्छा पता चला ट्रेड जो प्रॉफिट टारगेट है वो भी हिट नहीं हुआ, लॉस टारगेट है वो भी हिट नहीं हुआ, तो क्या करोगे? पूरे दिन ट्रेड करोगे? हाँ देव सर, सुमड़ी में बैठेंगे। पता चला, देखो लेट्स से आपका दिन का लॉस टारगेट है 2000 और प्रॉफिट टारगेट है 5000। ठीक है, पहला ट्रेड 1000 रुपए का प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड 500 का लॉस, तीसरा ट्रेड 2000 का प्रॉफिट। अभी 3000 का प्रॉफिट हुआ है 3 ट्रेड के बाद। 3000 माइनस कितना बोला था? 500, 1000 का लॉस बोला था ना। चलो 2000 रुपए सुबह से कमाए हैं। ठीक है, क्या करोगे? और ट्रेड करोगे नहीं करोगे? You have a loss target and you have a profit target, but your targets are not hit yet. What will you do after a couple of trades? You'll keep on trading till the target, your profit target or your loss target doesn't hit, right? Stop trading, leave for the day. But do you guys do that? Actually करते हो क्या? रुकते हो? No, right? You don't leave it, right? You keep on trading. That's the mistake. That's why you are paying more than enough of brokerage. इसीलिए आप brokerage दे रहे हो पूरा दिन, right? So stop your trading once you're done. Rule number 4, set your trade limit. Rule number 4, set your trade limit. If your trades are not hit, right? Rohit Dilwale. Guys, I cannot keep on removing everyone from the session. Why exactly it is required that you keep on drawing in the screen? How the hell this is so tough to understand? इतना मुश्किल है क्या ये समझना कि भाई स्क्रीन पे कुछ ड्रॉप नहीं करना है? कितनों को रिमूव करूं? 5 को रिमूव कर चुका हूं अब तक। गजब लोग है यार। ओके, मूविंग अहेड। सो पूरे दिन आप ट्रेडिंग नहीं करने वाले हो, ठीक है? 3 ट्रेड हो गया, खत्म करो मार्केट। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो मिला खुश रहो उसके साथ। इफ यू हैव मेड सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिव इट, राइट? आपने प्रॉफिट किया, आपने दिन का लॉस किया, जो मिल गया खुश रहो उसके साथ। जय जवान जय किसान, मार्केट बंद कर दो। 3 ट्रेड कर लिए। एक बात समझो, आप अगर 3 ट्रेड में नहीं कमा पाए ना दिन भर में, 300 ट्रेड में भी नहीं कमा पाओगे, ठीक है? और आपकी किस्मत में वो दिन अच्छा था, 3 ट्रेड कमा लिए, तो चौथे ट्रेड की क्या जरूरत है भाई? Ayush sir asked one very nice question. Do big traders also set their trade limit? What is the definition of a big trader? Tell me. Big bulls. Tell me the definition of a big trader. Means profitable trader, like banks. I'll tell you one very genuine thing. Person who knows the market at a very high level and had achieved a lot. Diamond sir, आय हाय हाय भाई ये भयंकर बोला। मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताता हूँ, ठीक है? बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, डू यू थिंक दे कम इनटू द मार्केट टू ट्रेड? नो, राइट? व्हाट दे सेट इज, कल ये फलाना स्टॉक खरीदना है, एक ही बार में खरीद लेंगे वो 500 1000 करोड़ का।
if they want to buy something, a share or something, they will go to the market, they will purchase that in a fixed quantity, 200 300 crore at once. They'll not keep on trading for the whole day. Understand, it's us who is trading for the whole day. हम हैं जो पूरे दिन भर ट्रेड कर रहे हैं. क्यों? ब्रोकरेज भरना है हमको. हम गधे हैं. आई मीन मैं भी गधा था एक टाइम पे. दिन भर के, अरे मैं एक दिन मैंने, आई रिमेम्बर इट्स इन 2018, if I am not wrong, the specific date, it was 2018 October 23rd or 24th. I remember the day specifically because उस दिन का ना, जब मैंने स्टेटमेंट देखा ना, मैं पागल हो गया. I'll tell you why. November 23rd 2018, sorry, October 23rd 2018, if I'm not wrong the date. एक दिन आगे पीछे हो सकता है, 22nd होगा या 24th होगा, बिकॉज माई बर्थडे इज इन अक्टूबर, एंड मुझे याद है कि उसके 3 हफ्ते बाद हुआ था, 2-3 हफ्ते बाद हुआ था. ठीक है. सो द स्टोरी इज, I traded for the whole day, and because I was losing money every time I was trading, so I was focusing on how to get into the break even. मैं फोकस कर रहा था कि कैसे जीरो पे आ जाऊं, ना प्रॉफिट लॉस, ना प्रॉफिट पे रहूं ना लॉस पे रहूं, क्योंकि जितने ज्यादा लॉस हो चुके थे. ठीक है. मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि कैसे कैसे करके जीरो पे आ जाऊं. उस समय ज्यादा बड़ा कैपिटल था भी नहीं, 30-40 हजार 50 हजार के अंदर का था. तो जब भी 3,000-4,000 का लॉस हो रहा था, फिर छोटे छोटे ट्रेड करके उसको 2,000-1,000 पे लेके आ रहा था, फिर 1,000 से 2,000 पहुंच रहा था. ऐसे ऐसे करके ना डे क्लोज किया मैंने 200 रुपए प्रॉफिट पे. राइट. I was making 2,000-3,000 of loss, again making that loss to limit to 1,000, again making 200-300 rupees money, and that's how I was trading for the entire day. I was trading for the entire day, and by the end of the day, may I talk to you after the meet? No, not possible. Just give me some time. Just give me some time. Let me complete my story first. And for the entire day I was trading, and by the end of the day I remember I made 220 rupees or 22 rupees, somewhat like that. 220-22 रुपए उस दिन बने थे. ठीक है. मैं खुश. आज भाई ने तो 4,000 का लॉस स्क्रीन पे सुबह दिख रहा था, जीरो कर दिया, जीरो. दोस्तों को बोला मैंने कहा भयंकर ट्रेडर हूं मैं. ठीक है, कम मत आंक लेना. उन्होंने कहा ठीक है भाई, भयंकर आदमी है, 4,000 का लॉस जीरो कर दिया, तो 4,000 कमाना ही हो गया ये तो. 4,000 का लॉस बचा लिया, बहुत बड़ी बात है. मैं खुश, भयंकर खुश. ठीक है. आया स्टेटमेंट आया. ठीक है, अगले दिन. और मैंने उस दिन ब्रोकरेज दिया था 4,500 का. 4,500 rupees I paid brokerage and taxes. And somehow my roommate saw that statement and he said, भाई इससे अच्छा तो तू लॉस ही कर लेता, 4,000 का 500 रुपए तो बच जाते तेरे. So that was the story. So do not go ahead and take revenge from the market. Market is far more smarter than you, and people far more smarter than us are sitting there. So set a trade limit, trade that limit and leave that market. Let the market pay you with that amount itself. If the market wants to pay you, it will give you in 3 trades itself. अगर मार्केट को आपको पैसे ही देने हैं तो वो 3 ट्रेड में ही दे देगा, और अगर नहीं देना है तो 30 में भी नहीं देगा भाई. Clear everyone? Does that make sense? How do you limit your trades? Just a question. Is stock trading a kind of gambling? Cause everyone says that. No. कोई शेयर की इन्वेस्टिगेशन कैसे करे बताओ. मैं बताऊंगा सुरेश सर, थोड़ा पहले इसको लॉस को फोकस कर लेते जो सीख रहे. ठीक है. आई हैव 3 more rules. आई विल टेल यू इन अ क्विक सक्सेशन. फटाफट बता देता हूँ 3 और रूल. अगला है रिव्यू द मार्केट डे प्रायर. मार्केट एक दिन पहले चेक करो भैया. This is for all of you. If you want to trade in the market, you need to know tomorrow whatever is going to happen in the market, where exactly your buying levels are, where exactly your selling levels are. You need to know it a day prior. You cannot afford to go ahead, wait in the market, let the market react and go ahead and trade. You cannot afford that.
आप ये चीज कभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि मार्केट खुले आप चेक करो उसके बाद ट्रेड करो, ऑफ कोर्स वो तो करना ही है, लेकिन आपके लेवल्स आपको मार्केट खुलने से पहले पता होने चाहिए कि यहाँ ट्रेड करना है, वहां ट्रेड करना है, यहां से ऊपर गया तो ऐसे करना है, यहां से नीचे गया तो ऐसे करना है. If the market goes above this level, I'll buy. If the market goes below this level, I'll short set the market and so on. आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये है मेरा लेवल, अगर नहीं आया तो ट्रेड नहीं करोगे. If your level doesn't comes, you will not take a trade. Clear everyone? Make sense? Everyone, make sense? Start preparing for the market a day prior. You analyze it just before the market even starts. Right? Okay. Moving ahead. Next rule. Prepare a trading जर्नल. अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाओ. क्या ट्रेड किया वो लिखो भाई, हाथ से लिखो. टिल डेट आई ईदर टाइप माय ट्रेड्स इन माय एक्सेल शीट or I write it in a piece of paper that what exactly I traded, with what logic I traded. मैंने किस लॉजिक के साथ ट्रेड किया ये चीज मैं लिखता हूं. नो इट्स नॉट अ गुड आइडिया राघव सर. पटेल सर टॉपिक नंबर 5 का मतलब है आपको मार्केट कल खुलेगी ना, आज ही एनालाइज करना है कि मार्केट कल ऊपर खुली तो क्या करोगे, नीचे खुली तो क्या करोगे, साइडवेज खुली तो क्या करोगे, यहाँ इस लेवल के ऊपर गया तो क्या करोगे, इस लेवल के नीचे गया तो क्या करोगे. ठीक है. जब आप अपने ट्रेड्स लिखते हो उससे हेल्प क्या होता है मैं बताता हूं. When you start writing your notes, what happens? You read what you write, right? And you realize that okay, there was not even a trade. I made a mistake there. वहां तो ट्रेड था ही नहीं, मैंने गलती कर दी वहां ट्रेड लेके. ये आपके लिखने के बाद पता चलता है. ट्रेड हिस्ट्री देख के पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ट्रेड किया था. ट्रेड हिस्ट्री देख के नहीं पता चलता है. क्लियर एवरीवन? Clear everyone? Last but not the least, control your emotions. See, controlling your emotion कैसे होगा? कोई कहेगा मेडिटेट करो, ये करो, वो करो. मैं वो स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं दूंगा आपको. बिल्कुल करना चाहिए मेडिटेशन, योगा अच्छी चीज है, करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, है ना. लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं सर. मार्केट में इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे अंदर 3 इमोशन है. ग्रीड, फियर, दो ही है सॉरी, ग्रीड और फियर. इन दोनों का, और वो राइवलरी वाला हो जाता है, वो आप ग्रीड में नहीं पकड़ सकते हो, नहीं फियर में पकड़ सकते हो. सो राइवलरी पकड़ लो कि हाँ भाई मार्केट ने लॉस दे दिया, अब तो मैं प्रॉफिट करके छोड़ूंगा, वो वाला. ठीक है. सो दिस 3 इमोशंस यू नीड टू क्लियर. हाउ विल यू क्रिएट, आई मीन control your greed part? Set your profit targets. If you are done with your targets, close the market. Fear, can you lose if you have set a target of 2000 losing 2000 rupees for on a single day, and you know you can sleep peacefully after that? Can you lose 5000 on that day? आपने अगर अपना ट्रेडिंग जर्नल्स में कोई कॉलम नहीं है, क्यों ट्रेड लिया सुमित सर, बस इतना लिख लो. I took the trade because there was a green candle which was a breakout. There was a red candle which was a breakdown. The support was broken. The resistance was clear. ये सारे लिख दो. ठीक है. सो अगर आपको पता है कि आपका लॉस इतना होने वाला है और उसके बाद लॉस हो ही नहीं सकता उससे ज्यादा, तो आपका डर तो खत्म हो गया ना. मार्केट में 2000 लॉस देने ही आए हो आप, सेट कर लो कि 2000 लॉस देना ही है भाई. क्लियर एवरीवन? हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस? रिवेंज बता दिया मैंने. नंबर ऑफ ट्रेड खत्म हो गया, नंबर ऑफ प्रॉफिट खत्म हो गया, नंबर ऑफ लॉसेस खत्म हो गया. मार्केट में क्या रिवेंज लोगे? मार्केट क्लोज कर दो.
सिस्टम बंद कर दो, बेस्ट रिवेंज। What is the best thing you can do in the market which is in your control? You can close your system. सबसे एक चीज जो आपके कंट्रोल में है मार्केट में, वो है आपका सिस्टम। उसको कभी भी बंद कर सकते हो। अमन सर, टारगेट तो धीरे धीरे हिट होगा ना, एक ही दिन में आप सोच लोगे कि आप टारगेट हिट कर लो, पॉसिबल ही नहीं है ना सर। आप 5,000 रुपए सोच के आए हो, और आप सोच के आए हो कि हाँ इतना लॉस देना, इतना प्रॉफिट देना, और आपका टारगेट लिमिट 5,000 है। पहले दिन 5,000 कमाने चलोगे तो कहां से कमाओगे सर? क्लियर? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? हिंदी इंग्लिश सबको क्लियर है यहां तक? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। इज माय वॉइस ब्रेकिंग या क्लियर है? हाईएस्ट प्रॉफिट 3.5 लाख, लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं था, वो मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट था। 3.5 लाख इन अ सिंगल डे। हाँ, बजट के दिन में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता हूँ, बट आई डू नॉट कैलकुलेट द बजट प्रॉफिट, बिकॉज मुझे पता होता है कि बजट में मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बिठाता हूँ ना कि मार्केट कहीं चला जाए मुझे प्रॉफिट ही होगा। और लोगों को लगता है कि कॉल पुट दोनों खरीद लो, दोनों में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इस बजट में मार्केट पहले 2 या 3% शायद नीचे गया था, या शायद ऊपर गया था। जहां तक मुझे याद है कि दोनों हुआ था, ऊपर और नीचे। जब मार्केट नीचे गया तब भी मैं प्रॉफिट में था, जब मार्केट ऊपर गया तब भी मैं प्रॉफिट में था। और मैंने बहुत बहुत स्ट्रैटेजी बिठाई थी, और वो खाली बजट के दिन ही काम आती है। नंबर 6 पॉइंट लिखो कि क्या लिया ट्रेड, क्यों लिया ट्रेड, कब लिया ट्रेड, टाइम लिखो, कितने में लिया, कितने में स्टॉप लॉस रखा, कितने में टारगेट रखा, सब लिखो वहां पे एक पेपर पे। वो है मेंटेनिंग अ जर्नल। कॉलम मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है सर। पॉइंट 1 एक बार रिवीजन करवा दो। पॉइंट 1 रिवीजन की जरूरत नहीं, पॉइंट 1 में एक्सप्लेनेशन बाकी है, इसीलिए पूछ रहा हूं, बाकी सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब सुनो, सबसे पहली बात, कैपिटल मैनेज कैसे करोगे? कैपिटल पता ही नहीं है क्या है। आपको अपना कैपिटल 20,000 रुपए से स्टार्ट करना है। ठीक है। अब 20,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट 5,000, दूसरा पार्ट 15,000। ये 15,000 आपका रिजर्व है। ठीक है। ये 5,000 में 2 पार्ट है, 1,000 और दूसरा पार्ट है 4,000। दिस is your entire capital of 20,000 rupees. This is your reserve. One moment. This is your reserve, and this is what you use on trading, right? And this is your daily risk. What will be your daily reward? Double of it, which is 2,000 minimum. आपके डेली रिस्क का 2 गुना होना चाहिए आपका डेली रिवॉर्ड। क्लियर? सो 5,000 का कैपिटल यूज करके आप डेली 2,000 का टारगेट करोगे और 1,000 लॉस देने की कोशिश करोगे मार्केट को। ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर 20,000 है, 5,000 यूज करने को क्यों कह रहे हो? 20,000 पूरा पूरा यूज करूंगा तो ज्यादा काम आएगा ना। अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू कीप ऑन लूजिंग 1,000 एवरी डे, फॉर हाउ मेनी कंटिन्यूअस डेज यू कैन ट्रेड? आप अगर डेली 1,000 लॉस कर रहे हो तो कितने दिन ट्रेड कर लोगे? 20 दिन। 20वें दिन 5,000 रुपए बचेगा नहीं, 18वें दिन 5,000 बचेगा। आंसर इज नो।
5,000 कब तक बचेगा? पहले दिन लॉस कितना कैपिटल? 19,000। दूसरे दिन लॉस कितना कैपिटल? 18,000। करेक्ट, 15 या 16 दिन बचेगा मैक्स। तो 15 दिन बाद, और मतलब अगर आप 1,000 रुपए का लॉस डेली देके ट्रेड करते हो तो कितने दिन ट्रेड कर सकते हो? 20,000 के साथ 15 दिन। और मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूं कि 15 दिन आप लॉस कर ही नहीं सकते हो, चाह के भी नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट इट, even after 15 days, consecutive 15 days, you cannot make a 15 days loss. Consecutive 15 days, you won't be able to make loss if you follow all these rules. आप ये 7 रूल फॉलो कर लो, आप 15 दिन लॉस कर ही नहीं सकते हो भाई। 15 दिन 15,000। पैसा बचाओ, पैसा वापस स्कीम। क्लियर एवरीवन? One of my mentors used to say, do not plan for a गड्डी। गड्डी यानी कि मारवाड़ी लोग पैसे का जो ढेला होता है ना, पूरा पैसे का बंडल होता है, उसको गड्डी कहते हैं। Do not directly plan for a गड्डी, otherwise you will lose your चड्डी। डायरेक्टली गड्डी की प्लानिंग मत करो, वरना चड्डी भी जाएगी। ठीक है, पहले छोटी छोटी चीजों का शुरुआत करो। 1,000 2,000 प्लानिंग करो, वैसे तो गड्डी भी आएगी और जो है वो भी बची रहेगी। 1,000 एक बार एक्सप्लेन कर दो। 1,000 मतलब डेली 1,000 का लॉस लेना है आपको। आप पहले ट्रेड में रिस्क ले लो 300 का, दूसरे में 300 का रिस्क ले लो, चौथे ट्रेड में आपको दिख रहा है कि यहाँ 700 का रिस्क है। क्यों लोगे वो ट्रेड? क्योंकि 7 और 6 1200 होता है, 7 6 13 है ना, 1,300 रुपए का रिस्क हो रहा है। आप वो ट्रेड लोगे ही नहीं, छोड़ दोगे। क्लियर? 3 ट्रेड मैंने बोले ना, पहले ट्रेड में लेट से 500 का रिस्क ले लिया, दूसरे ट्रेड में 400 का रिस्क ले लिया, अब तीसरा ट्रेड आपको दिख रहा है कि 300 का रिस्क है, लेकिन आप ले लोगे वो ट्रेड तो आपका रिस्क 1,200 का पहुंच जाएगा। क्यों लोगे वो ट्रेड? छोड़ दोगे। निखिल सर कर सकते हो, अगर कैपिटल आपका इसका हाफ है तो 500 का रिस्क होगा आपका। मैं कह रहा हूं ना, आप अपना रिस्क अपने हिसाब से मैनेज करो। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये प्रॉपर है कि भाई इतना रिस्क लोगे, इतना रिवॉर्ड लोगे। आपको लग रहा है कि मैं डेली 500 का ट्रेड ही मैं लॉस कर सकता हूं, करो डेली 500 का लॉस करो, कोई बात नहीं, तब आपका टारगेट 1,000 कर दो। क्लियर एवरीवन? Clear everyone? Does that make sense everyone? 1,000 is your daily loss, right? Let's say first trade you took a loss of 500 rupees, second trade you took a loss of 400 rupees. Now you know that if you take the third trade, the loss limit cannot be 100 rupees. Close the system for that day. Even if you have not taken 3 trades, that's okay. Close the system. Clear? That's how you are going to build your. So can we use leverage? Use leverage. That's absolutely fine. Use leverage. With 5,000 rupees, whatever you can do it. 5,000 के साथ जो करना है वो करो, लेकिन दिन का 1,000 रुपए के ऊपर नुकसान मत करना। जो करना है वो करो। आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, आप 3 ही ट्रेड में खत्म कर दे रहे हो काम। बात ही खत्म ना। आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, बात ही खत्म। क्लियर? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि ये 7, मैंने वही बोला ना, चड्डी गड्डी वाला, राइट? You do not plan for the gaddi right away, right? Start giving small losses to the market. मार्केट को छोटे छोटे लॉस दो और उसको बोलो कि भाई ये ले, 300 का लॉस चाहिए, ये ले, बट मेरे को सिखा कि मार्केट रिवर्सल कैसे मारता है। 200 का लॉस चाहिए, ये ले, लेकिन मेरे को बता कि यहां से ट्रेड ऊपर क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, और ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बता मेरे को भाई, लेकिन मार्केट को लॉस देखो बोलो। तो जब आप मार्केट को बार बार लॉस देने लगोगे, मार्केट कहेगा ये पागल हो गया, इसको प्रॉफिट दे दो थोड़ा सा। आज तक हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागे हो ना, फिर लॉस हो रहा है, कभी लॉस के पीछे भाग के देखो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। चार्ट आज कैसे समझाऊंगा सर? राघव सर सब आज ही खा लोगे क्या?
हर चीज में एक ही दिन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ना आप लोगों को, चार्ट्स कल समझेंगे। जो आपने लिखा है, अच्छा ये 20,000 का कैपिटल होना चाहिए, 20,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 15,000 को साइड कर दो और 5,000 से ट्रेड करो, ठीक है, और 1,000 रुपए डेली का नुकसान दो, ठीक है। अगर डेली 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है तो 15,000 में से 1,000 निकालते रहो, वो उसमें ही रखो, अकाउंट में ही रखो। लेकिन मान लो किसी दिन किसी ट्रेड में 6,000 का कैपिटल लग रहा है, ताकि आप 1,000 रुपए का रिस्क मैनेज कर सको, तो आप अकाउंट से 1,000 रुपए नहीं डालोगे ना, यूज कर लो वहां पे 6,000, कोई बात नहीं है। 5,000, 6,000, 4,500, 4,000 जो भी हो रहा है वो यूज करो, लेकिन आपका लॉस लिमिट और प्रॉफिट लिमिट हटना नहीं चाहिए। क्लियर एवरीवन, मेक सेंस? हर ट्रेड एग्जैक्टली 5,000 पे तो नहीं रुकेगा ना, हर ट्रेड एग्जैक्टली 1,000 रुपए का नुकसान तो नहीं देगा ना, हर ट्रेड एग्जैक्टली आपको 2,000, हर दिन आपको 2,000 या फिर 1,000 का लॉस एग्जैक्ट तो नहीं होगा। तो ऑन एन एवरेज आपको ये मेंटेन करना है। किसी ट्रेड में आपको 5,200 लग सकता है, 5,500 लग सकता है, तो आप अकाउंट से तो पैसे नहीं डालोगे ना, 15,000 अकाउंट में मेंटेन करो और सोच लो कि हाँ भाई इस ट्रेड में मुझे 300 का रिस्क लेना है, 300 के ट्रेड के हिसाब से इतनी क्वांटिटी बनती है, इतनी क्वांटिटी में हो सकता है 8,000 का कैपिटल लग जाए, है ना, कोई बात नहीं, कैपिटल तो अकाउंट में पड़ा हुआ है ना, लेकिन मेरे को पता है ना मेरा लॉस लिमिट जो है मेरे लिमिट के अंदर ही है, माय लॉस लिमिट्स आर इनसाइड माय लिमिट्स, देन डू इट। क्लियर एवरीवन? राघव सर क्लियर? रिया मैडम वही तो कह रहा हूं, लॉस तो आपके हाथ में है ना, लॉस आपके हाथ में, जब 1,000 के ऊपर जा रहा बंद करो ना वहीं पे सिस्टम, एग्जिट करो ना ट्रेड, मैडम लॉस ज्यादा कैसे हो जाएगा? मेरे मेंटर है एक, उनका मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, कभी कभी मीटिंग वगैरह देखता हूँ, जब भी उनका ट्रेड प्रॉफिट देते हैं, उनका गलती से 1-2 लाख ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, वो ऐसे टारगेट करते हैं आज 2 करोड़ कमाना है, वो जब तक क्लिक करते हैं ना, क्योंकि वो इतनी हैवी क्वांटिटी से करते हैं, जब तक सिस्टम में माउस से क्लिक करते रहते हैं ना, तब तक 1-2 लाख ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 1-2 लाख ऊपर ही हो जाता है उनका, गलती से मतलब ज्यादा कमा लेते हैं वो। That's how my mentors are. राघव सर 5 दिन 1,000 का लॉस क्यों लोगे आप? आप ये कह रहे हो कि 5 दिन आप 3-3 ट्रेड ले रहे हो डेली, मतलब 15 ट्रेड ले रहे हो, और 15 ट्रेड में आपका एक भी सही नहीं होगा, फिर तो आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ है, फिर स्ट्रैटेजी सही करो, समझ रहे हो? हाँ 1,000 का लॉस हो रहा है तो क्यों ट्रेड करोगे, वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम बंद करो। 1,000 का लॉस हो जाए तो सिस्टम बंद करो, 2,000 का प्रॉफिट हो जाए तो सिस्टम बंद करो, ना 1,000 का प्रॉफिट हुआ ना 2,000 का लॉस हुआ, ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 ट्रेड हो गए, दिख रहा है मुझे 300 का लॉस हुआ है, दिख रहा है मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ है, लालच मत करो, सिस्टम बंद करो। हाँ वो कल सिखाऊंगा ना स्ट्रैटेजी, आज ही थोड़ी। हाँ जरूरी है एंट्री एग्जिट, राइट? I believe I have cleared all of your doubts, and with this I conclude my session for today. ठीक है, that's it from my side guys. I hope you guys enjoyed. Just give me one moment. Okay, thank you so much for joining everyone. You have a lovely evening ahead. Take care of yourself and your family. I'll see you guys tomorrow. Bye bye for now.